Dear all, Varsanupika, a great kriti of Acharya Kund Dev, and on that Sarvodaya Tika by Acharya Virag Saviji Maharaj is going on. And in this, after discussing the first Mangalacharan, second Gatha is going on, in which Acharya Shri Kund Dev had given the names of all the Anuprekshas, and one by one Acharya Virag Sagarji Maharaj is giving a brief description of all the Anuprekshas. First Anupreksha we see Adhruv Anupreksha means nothing in this word is everlasting, that we had already discussed. And second one was Ashran Anupreksha, means nobody can give us shelter. Nobody can give us shelter. This is the Ashran Anupreksha. And third one, the discussion was yesterday going on regarding the Eyattam, means Ekatva Anupreksha. So in this, yesterday we see what is Ekatva Anupreksha, that I am not a body, I am a soul. I am only one and I am different from all material things in the life. So whether this is my body, whether it is my relatives, whether it is my father or it is my mother, whosoever it may be, even the material things like wealth, like property, like gold, silver, and everything. These all are different from my soul. So this is the Ekatva Anupreksha, that I am only a single soul. I am different from all these things, and these all are the material things, and I am a Chetanatma. So that's why the nature of these things is different from my soul, because these are the material things and I am a Chetanatma. So that's why it is entirely different. And this thing we had seen by the quotations of Ishtopadesh Shlok number 27 and Tattvasar Shlok number 27 and 28, in which Acharya Shri repeated this fact that I am a body, I am not a body, I am a soul and different from all material things. Similarly, in Tattvasar, Acharya Devsin said that I am free from all karmas, no karmas, and contains the qualities of supreme knowledge like Siddhas. I am Siddh, I am Shuddh, means I am pure. I am Nitya, means I am everlasting. I am one, I am Niralamb, without any avlamban. So these things we had already discussed, and today we are going to discuss the fourth one, that is Anna. Anna means Anyatva Bhavana. So this fourth Anupreksha, that is the Anyatva Bhavana, that we are taking today. बंधुओं, आचार्य कुंद देव के महान ग्रंथ वार्षानुरेखा, जिस पर सर्वोदयी नाम की आचार्य विराग सागर जी महाराज की यह टीका, एक महान टीका जिस पर हमारा चर्चा चल रही है, और जिसमें मंगलाचरण के उपरांत आचार्य श्री एक एक अनुप्रेक्षा का संक्षेप में आपके लिए वर्णन कर रहे हैं। हमने देखा पहली अनुप्रेक्षा, अपन को रिवीजन करते जाना है, ऐसा नहीं कि अपन आगे आगे पढ़ते जाएं और पीछे का छोड़ते जाएं, भूलते जाएं। इसलिए अपन थोड़ा सा 2-5 मिनट में क्या करते हैं, पिछला भी एक, ताकि इससे 2 फायदे हो जाते हैं, अपने सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो जाता है और साथ में एक जो कंटिन्यूस सीक्वेंस बना हुआ है वो भी हमारी समझ में आ जाता है कि हम आखिर पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं। इसलिए अपन थोड़ा सा आगे पीछे का भी पलट लेते हैं। तो पहली अनुप्रेक्षा कौन सी थी? अध्रुव अनुप्रेक्षा, यानी अध्रुव यानी अनित्य। तो जितनी भी संसार में, 3 लोक में जितनी भी चीजें हैं वो क्या हैं? अनित्य हैं, कोई भी शाश्वत नहीं है, सभी अशाश्वत है, समाप्त होने वाली हैं, क्षणिक हैं।
तो ये क्या है? अध्रुव अनुप्रेक्षा। एकमात्र निजात्मा ही स्थायी है, एकमात्र निजात्मा ही शाश्वत है, नित्य है, स्थायी है, हमेशा साथ रहने वाली है। बाकी चाहे यह शरीर है, चाहे स्त्री है, चाहे पुत्र है, चाहे धन संपदा है, सोना है, चांदी है, मकान है, महल है, कुटुंब है, ये सब क्या है? अशाश्वत हैं। चक्रवर्ती, नारायण का पद और बड़े बड़े प्रतिनारायण, बलभद्र आदि के पद, ये भी क्या है? अशाश्वत हैं, ये भी अस्थायी रहने वाले नहीं हैं। एकमात्र मेरी आत्मा ही स्थायी है, जब तक संसार में है तब तक भी ये साथ में है, और मुक्ति पाने के बाद भी मात्र मेरी आत्मा ही मेरा साथ देने वाली है। तो ये अध्रुव अनुप्रेक्षा। और दूसरी कौन सी थी? अशरण, अशरण अनुप्रेक्षा। कहीं भी लोक में कोई भी शरणभूत नहीं है। जैसे एक हिरन जिसे व्याघ्र ने पकड़ लिया है, अथवा एक पोत जो कि महासमुद्र में नष्ट हो गया है, अब उनको बचाने वाला कोई नहीं है। ना तो उस पोत पर सवार व्यक्ति को बचाने वाला है, ना ही उस हिरण को जो व्याघ्र की चपेट में महा अटवी में, महाजंगल में फंस गया है, अब उसको बचाने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार से भव समुद्र में डूबते हुए इस प्राणी को बचाने के लिए, मृत्यु के शिकंजे में फंसे हुए इस व्यक्ति के लिए कोई भी शरण नहीं है। मणि, मंत्र, औषधि, वैद्य, माता पिता, सहोदर और जितने भी बंधु हैं, ये सब मात्र तब तक हैं जब तक हमारा आयु क्रम शेष है। आयु क्रम समाप्त होने पर, मृत्यु की चपेट में आने पर कोई भी रक्षक नहीं है। तो इस प्रकार से अशरण भावना का भी हमने चिंतन किया। और चिंतन का अर्थ है, भावना का क्या अर्थ है? बार बार चिंतन। इसलिए हम हर रोज उसको चिंतन करते हैं। हर रोज जो क्या करते हैं, हम अपनी पिछली भावनाओं को भी वापस चिंतन करते हैं, क्योंकि भावना का अर्थ ही है बार बार चिंतन करना। भावना है पुनः पुनः भावेति भावना। और तीसरी कल हमने जो चर्चा की थी, कौन सी भावना थी? तीसरी कौन सी थी? एकत्व भावना। एकत्व भावना यानी मैं एक आत्मा, एक हूं, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। तो अकेला ही जन्म लेता हूं, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता हूं, अकेला ही कर्मों को करता हूं, अकेला ही उनका फल भी भोगता हूं। तो ये क्या है? एकत्व भावना है। ना तो कोई दूसरा मेरे साथ रहा है और ना ही रह सकता है। जितने भी पदार्थ हैं ये क्या हैं? जड़ हैं। और मैं क्या हूं? एक चैतन्य आत्मा हूं। चेतन का कभी जड़ से कोई संयोग संभव ही नहीं है, क्योंकि वो चेतन है और वो सब जड़ पदार्थ हैं। तो मैं एक आत्मा कैसी हूं? बिल्कुल एक अकेली ही आत्मा हूं। यही बात पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश में भी कही थी, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा। तो मैं ममत्व से रहित एक शुद्ध और ज्ञानी और योगियों के गम्य बाह्य संयोगजा भावा मत्ता सर्वव्यापी भूता। तो मैं इन सबसे भिन्न मात्र योगियों के द्वारा जो जानी जा सकती है, ऐसी एकत्व आत्मा हूं। और जितने भी बाह्य संयोगजत भाव हैं, ये क्या है? मुझसे सर्वथा भिन्न हैं, सर्वथा भिन्न। तत्वसार में भी आचार्य जी ने कहा था कि मैं कर्म नो कर्म से रहित, केवल ज्ञान आदि गुणों से संबद्ध, सिद्ध शुद्ध नित्य निरालंब एक आत्मा। तो ये सब चीजें हमने कल एकत्व भावना में देखी थी। आज अगली अन्यत्व भावना, चौथी भावना कौन सी है? अन्यत्व भावना के विषय में आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज अपनी सर्वोदय टीका में कहते हैं, अन्य यानी अन्यत्व भावना, अन्यत्वानुपेक्षा चतुर्थी वर्तते। यानी अन्यत्व भावना, अन्यत्व अनुप्रेक्षा चतुर्थी वर्तते, यानी ये चौथी भावना है। चौथी अनुप्रेक्षा कौन सी है? अन्यत्वानुप्रेक्षा नाम की चौथी भावना है। तो इसमें क्या कहते हैं? एकत्व अन्यत्वयो अंतरम ज्ञेयम वर्तते। तो पहले तो बात यह है कि एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में अंतर क्या है। वहां भी यही बात कही जा रही थी कि मैं एक हूं,
बाकी सबसे अलग हूँ, यहाँ भी कहा जा रहा है कि मैं बाकी सबसे अलग हूँ। तो दोनों में अंतर क्या है? तो ये बात सबसे पहले अंतर्ज्ञेयम वर्तते, इस अंतर को जानना अनिवार्य है। एकत्वानुप्रेक्षी जनः एकोऽहमिति विद्यात्मकं चिंतनं करोति, अन्यत्वानुप्रेक्षकस्तु परद्रव्यान् भिन्नोऽहम् इत्यादि चिंत्यति। तो दोनों में अंतर मात्र इतना ही है कि एकत्व अनुप्रेक्षा करने वाला क्या कहता है? मैं एक हूँ, मैं क्या हूँ? एक हूँ। इस प्रकार विद्यात्मक यानी कि सकारात्मक चिंतन करता है। बात एक ही है लेकिन दृष्टिकोण अलग है। एक ने कहा कि मैं एक हूँ यानी सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव, और दूसरा क्या कह रहा है? अन्यत्व भावना वाला, मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ इत्यादि भेदात्मक चिंतन करता है। एक तो सकारात्मक चिंतन कर रहा है यानी एक बात को कहने के दो तरीके हैं। एक ने कहा रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, और दूसरे ने कहा भोजन दिन से करना चाहिए। बात एक ही कही जा रही है लेकिन कहने के दो तरीके हैं। एक विधि तरीके से कहा जा रहा है और एक निषेध तरीके से कहा जाता है। विधि और निषेध ये दो तरीके किसी भी बात को कहने के होते हैं। तो विधि पक्ष ये कहता है कि जो जैसा करना है वैसा उपदेश देना वो विधि है, और जैसा नहीं करना उसके लिए निषेध करना ये क्या है? निषेधात्मक पक्ष है। तो एकत्व भावना कैसी है? विधि पक्ष को ध्यान में रख के गई। मैं क्या हूँ? मैं एकत्व भावना ये कहती है मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। ये क्या है? विधि पक्ष से कही गई। और अन्यत्व भावना कहती है कि मैं अन्य परद्रव्यों से भिन्न हूँ, मैं इस रूप नहीं हूँ। जब हम इसमें डिटेल में जाएंगे, जब हम समय सार में देखते हैं तो समय सार में यही आचार्य कुंद देव इसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं पर स्त्री रूप नहीं हूँ, मैं पुत्र रूप नहीं हूँ, मैं धन रूप नहीं हूँ, मैं सोना रूप नहीं हूँ, चांदी रूप नहीं हूँ, मकान रूप नहीं हूँ, महल रूप नहीं हूँ, नौकर चाकर आदि रूप नहीं हूँ। फिर और बारीकी में जाते हैं, ये कर्म और नो कर्म रूप भी मैं नहीं। ये कर्म और नो कर्म ये भी मेरे नहीं है, इनसे भी भिन्न हूँ, क्योंकि ये भी क्या है? पुद्गल हैं। मैं गुणस्थान रूप नहीं हूँ, मैं निर्जरा स्थान रूप नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। जब समय सार में हम देखते हैं ये सब मेरे नहीं है, मैं इन सब से भिन्न हूँ, क्योंकि ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। जितनी भी ये चीजें हैं ये क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं, ये मेरे कदाचित नहीं हो सकते। तो ये क्या है? अन्यत्व भावना है। एक एक चीज से अपने आप को भिन्न मानते जाओ, एक एक चीज को लेकर जिसको अपन अपना मान रहे थे, चाहे वो स्थूल चीज है चाहे सूक्ष्म चीज है। स्थूल रूप से हमें दिख रहा है कि ये शरीर, स्थूल रूप से हमें दिख रहा है स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, तो ये स्थूल रूप से दिख रहे हैं। और सूक्ष्म रूप से कर्म, नो कर्म, तो ये क्या है? ये सूक्ष्म चीजें। तो स्थूल रूप से भी जो वस्तुएं दिख रही हैं उनसे भी भिन्न हूँ और सूक्ष्म रूप से भी भिन्न हूँ। तो हमने बताया था कि जहाँ द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद जी, सिद्धांति देव नेमिचंद जी महाराज हैं, उन्होंने गाथा नंबर 8 के माध्यम से कहा था कि पुग्गल कम्मादीनाम व्यवहार दो, पुग्गल कम्मादीनाम व्यवहार दो। तो ये जो आत्मा पुद्गल कार्यों को कर रहा है, जितने भी पुद्गल कार्यों को, खाना खाना, चलना फिरना, ये क्या है? व्यवहार दो। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है, पुग्गल कम्मादीनाम व्यवहार दो। और आत्मा जो है, जो दूसरे कार्यों को भी, अपने जो भावों को भी कर रहा है, वो भी कैसे कर रहा है? निश्चय दो।
तो पुग्गल कम्मादीनाम व्यवहार दो, और जो अपने भावों को भी कर रहा है, निश्चय दो चेतन कम्मादाता। पुग्गल कम्मादीनाम कर्ता व्यवहार दो, निश्चय दो चेतन कम्मा नादा। तो चेतन कार्यों को भी जो कर रहा है, चेतन कर्मों को भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अशुद्ध निश्चय से, शुद्ध नया शुद्ध भावाना। तो जो ये भाव भी हो रहे हैं जो कर्म बंध में कारण है, इसको करने वाला कौन है? ये जो आत्मा इन कार्यों को भी कर रहा है। अगर हम कहें कि आत्मा खाने का कार्य कर रहा है, पीने का कर रहा है, चलने का कर रहा है, तो ये तो कहते हैं व्यवहार से। व्यवहार से मैंने खाया, खाना खाया, मैंने स्कूल गया, पाठशाला में पढ़ा, जो कुछ भी, ये सब व्यवहार से। और अगर हम कहें कि निश्चय से, तो निश्चय से क्या कर रहा है? वो भावों का करता है। मुझे भूख लगी, खाना खाने की इच्छा होना, भाव का होना, ये करता जो है आत्मा है। कैसे? निश्चय से। लेकिन कौन से निश्चय से? अशुद्ध निश्चय से है। ये भी अशुद्ध निश्चय से है। और शुद्ध निश्चय से क्या है? एकमात्र निजात्म द्रव्य का करता हूं, और कुछ नहीं। तो वही बात यहाँ पर हमने बताई कि जब अन्यत्व भावना का हम चिंतन करते हैं, तो ना तो वे व्यवहार कर्म मेरे हैं, और ना ही वे अशुद्ध निश्चय वाले कर्म भी मेरे हैं। वो भाव भी मेरे नहीं हैं, वो अशुद्ध भाव हैं, वो भी मेरे नहीं है। एकमात्र निजात्मा, वो सर्वथा भिन्न की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सर्वथा भिन्न का अर्थ यही है कि सूक्ष्म जो स्थूल चीजें हैं वो तो मुझसे भिन्न है ही, सूक्ष्म चीजें भी जो आत्मा से लगी हुई हैं, एक में लगती हैं, जो जुड़े हुए भाव हैं, करने वाला आत्मा ही है और कोई कर नहीं सकता, वो भी मुझसे सर्वथा भिन्न है। तो यहाँ पर क्या कहा कि एक दृष्टि विधि है और एक निषेध है। तो विधि से कहा तो क्या कहा कि मैं एक आत्मा हूं, एकत्व भाव। और निषेध पक्ष को लेकर कहा कि मैं क्या हूं? पर द्रव्य से भिन्न हूं। तो ये भेदात्मक, निषेधात्मक कि मैं पर रूप नहीं हूं, ये क्या है? निषेध पक्ष है। तो ऐसा द्रव्य संग्रह, इति द्रव्य संग्रह से गाथा 35 टीकायाम विशदीकृतम वर्तते। तो यही बात द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 35 की टीका में भी विशदीकृतम यानी कि स्पष्ट की गई है। न केवलम सर्वोभ्य बाह्य पदार्थेभ्य श्रीरादिपि अहम मन्य। बोले न केवलम सर्वेभ्यो, न केवल समस्त सर्वेभ्यो बाह्य पदार्थेभ्यो, जो बाहर के पदार्थ हैं मात्र वही हमसे भिन्न नहीं है। स्वशरीरादपि अहम मन्य, जो अपना शरीर आदि भी है वो भी मैं नहीं हूं, वो भी मुझसे भिन्न है। बाहर के पदार्थ तो दिख ही रहे हैं, घेवर चंद जी अलग हैं, बालचंद जी अलग हैं, अपने और लोग भी सब अलग अलग दिख ही रहे हैं। लेकिन ये जो अपना शरीर भी है, ये भी क्या है? मुझसे भिन्न है। इत्येव पुनः पुनः चिंतनम अन्यथा अनुप्रेक्षा। तो ये क्या है? इस चीज का बार बार चिंतन करना, ये क्या है? अन्यत्व अनुप्रेक्षा। ये बात एक बार नहीं, बार बार चिंतन। महाराज बार बार एक ही बात बोली जा रहे, एक ही बात को 3 दिन से रट रहे। अरे यही भावना है, यही चिंतन है, एक ही बात को बार बार बोलना, यही व्याख्या जो है बार बार की जा रही है। तो उसका कारण यही है कि भावना का अर्थ ही है बार 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 बार, ताकि वो माइंड में बैठ जाए वो बात जबरदस्ती। तो बार बार इस बात का चिंतन करना। एतत् सारभूतम चिंतनम समय सार कलशे 185 इत्थम प्रकटितम। तो यही बात इसी अनुप्रेक्षा के सारभूत चिंतन को, कौन से चिंतन को? सारभूत चिंतन को समय सार कलश की 185 नंबर कलश में इत्थम प्रकटितम, इस प्रकार व्यक्त किया गया है, प्रकट किया गया है। तो वहां क्या कहते हैं? सिद्धांतो यद
सिद्धांतो यमुदा तच्चित चरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति सदैवास्माम् एते ये ते समूल्य सन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणां तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समाग्रापि। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सिद्धांतो यदु यमुदात तचित्त चरितेर मोक्षार्थी भी सेव्यता। तो मोक्षार्थी भी, मोक्ष के अर्थी, मोक्ष को चाहने वाले, उनको क्या चाहिए? सेव्यता, सेवन करना चाहिए। किस चीज का? सिद्धांतो यदु यमुदात चित्त चरिते, तो उदार चरित्र वालों, उदार चरित्र वाले मोक्षार्थियों को चाहिए। क्या चाहिए? सिद्धांतों, सिद्धांत को ध्यान में रखें, सिद्धांत को ध्यान में रखें। शुद्धम चिन्मयमेक मेव परमं ज्योति। क्या कहा? शुद्ध। इस सिद्धांत की बात है, अभी व्यवहार की बात नहीं है यहाँ पे। तो जो मोक्षार्थी हैं, मोक्ष को चाहते हैं, और कैसे? उदार चारित्र वाले, उदार चारित्र वाले, उज्ज्वल चारित्र वालों, ऐसे मोक्षार्थियों को चाहिए कि वे सिद्धांत को सेवन करें, व्यवहार की बात को ज़्यादा नहीं महत्व दें। व्यवहार क्या है? ये तो मार्ग है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वही निश्चय। व्यवहार तो साधन है, साध्य क्या है? लक्ष्य क्या है? निश्चय। तो निश्चय यानी सिद्धांत को ध्यान में रखें। और सिद्धांत क्या कहता है? शुद्धम, मैं क्या हूं? शुद्ध हूं। सिद्धांत से मैं क्या हूं? शुद्ध हूं। चिन्मयमेकमेव चैतन्यमयी, एक एवं परम ज्योति। क्या कहा? मैं सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति हूं। सदैव अस्मयम, सदैव अस्मयम। क्या कहा? मैं एक परम ज्योति हूं। और कैसी? चैतन्यमय। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत की बात है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, परम ज्योति। क्या शब्द आया यहां पे? परम ज्योति। समय सार कलश में आचार्य अमृतचंद महाराज ने कहा परम ज्योति। और यही अमृतचंद महाराज जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखते हैं, और उसके भी मंगलाचरण में उन्होंने यही शब्द कहा, तज्जयति परम ज्योति। वहां भी उन्होंने परम ज्योति शब्द का प्रयोग किया। तो अब ये परम ज्योति क्या है? परम ज्योति क्या है? परम ज्योति का अर्थ कोई जलती हुई अग्नि, बहुत ज़्यादा लपट जिसमें हो, जो करोड़ों सूर्यों को भी तिरस्कृत करने वाली हो, ऐसी कोई परम ज्योति। आचार्य श्री विराग सागर महाराज एक दृष्टांत बताते थे। बोले उनके पास कोई व्यक्ति आया, गृहस्थ। बोले महाराज मेरे को तो ध्यान में बहुत गहराई में उतर गया हूँ, मुझे तो आत्मा का दर्शन होने लगा है। बोले अच्छा, आत्मा का दर्शन होने? बोले हाँ, कई सालों से, अभी 20-20 सालों से मेरा तो अभ्यास चल रहा है, और अब तो इतनी पारंगतता आ गई है कि साक्षात आत्मा दिखने लगी। बोले अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बताओ, लेकिन तुम्हें दिखता क्या है? क्या दिखता है? अरे क्या बताएं, परम ज्योति, करोड़ों सूर्यों को भी तिरस्कृत करने वाली ऐसा तेज में ज्योति। जैसे ही ध्यान में बैठता हूं, बस ऐसी तेज में ज्योति जो है दिखने लग जाती है। बोले वो जो ज्योति है, तुम्हें ये किसने कह दिया कि वो आत्मा है? बोले आचार्य अमृतचंद महाराज ने कहा था, तज्जयति परम ज्योति। अमृतचंद महाराज जी जो है समय सार कलश में भी यही बात कह रहे हैं, परम ज्योति।
तो बोले परम ज्योति तुमने पढ़ लिया, उसका अर्थ में जाने का प्रयास किया क्या? परम ज्योति का क्या अर्थ है ये बताओ। ये जो परम ज्योति है, ये जो प्रकाश है, ये क्या है? प्रकाश है क्या चीज ये? तो बोले वही आत्मा है वो तो। आचार्य अमृतचंद महाराज कह रहे हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि अगर वो प्रकाश आत्मा हो गया तो फिर जो आचार्य नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर और गाथा नंबर 16 के अंदर पुद्गल के विषय में बताया है, वो तो गलत हो जाएगा। बोले क्या बतलाया? सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेद तमस छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दवस से पज्जाया। तो कह रहे हैं कि सद्दो बंदो सुमो, सद्दो यानी शब्द, बंदो बंद, सुमो यानी सूक्ष्म, थूलो स्थूल, संठान संस्थान, भेद टुकड़े करना, तम यानी अंधकार, छाया यानी छाया, और उज्जो उज्जोत यानी प्रकाश, आतप आदव यानी आतप, सहिया पुद्गल दवस्य पज्जाया। ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। उद्योत आतप आदि ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। और तम यानी अंधकार, छाया, ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। चाहे प्रकाश है चाहे अंधकार है, ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं ये सब। तो ये सब पुद्गल की अगर पर्याय हैं तो आत्मा कैसे हो सकती है? एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप परिणत नहीं हो सकता। जो प्रकाश है ये क्या है? पुद्गल है। प्रकाश क्या है? पुद्गल है। अगर प्रकाश पुद्गल है तो वो जीव कैसे हो सकता है? बोले ये तो बात सही कही आपने। अरे मैं तो धोखे में था, आज तक धोखे में चल रहा था कि मेरे को तो आत्मा दिखने लगी। बोले यदि आत्मा दिखने लग जाएगी तो आत्मा क्या हो जाएगी? मूर्त हो जाएगी। और जबकि एकमात्र पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है? मूर्तिक है। वो क्या है? वो पुद्गल है। रूपिणः पुद्गलः। रूपी पदार्थ जितने भी हैं जिनमें क्या पाया जा रहा है? स्पर्श रस गंध वर्ण, वो किसमें है? पुद्गल के हैं ये। तो पुद्गल एकमात्र रूपी पदार्थ पुद्गल ही होता है। चेतन पदार्थ कभी पुद्गल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो परम ज्योति की बात कही है, तो परम ज्योति का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि बहुत तेज प्रकाश और वो, ये वास्तविकता में केवल ज्ञान रूप जो ज्योति है उसके विशेषण के रूप में, क्योंकि ज्ञान गुण जो है वो आत्मा में पाया जा रहा है। तो उस दृष्टिकोण से उसको एक परम ज्योति कह दिया। एतेयु समूल संति विविध भावा पृथक लक्षणः। ये जितने भी भिन्न लक्षण वाले हैं, पृथक लक्षण, विविध भाव प्रकट होते हैं। समूल संति विविध भावा, विविध भावों को प्रकट करते हैं। ते नास्मि अहम, मैं वो नहीं हूं। यत्रो अत्र ते मम पर द्रव्यम समग्रा अपि, क्योंकि वे सभी मेरे लिए क्या हैं? पर द्रव्य हैं, मुझसे भिन्न हैं, मुझसे पर हैं। तो यहाँ पर आचार्य अमृतचंद महाराज ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि मोक्षार्थियों को चाहिए कि वो सिद्धांत को ध्यान में रखें। सिद्धांत ये कहता है कि मैं इस शरीर से भी भिन्न हूं, इस कर्म नो कर्म से भी भिन्न हूं। ये सिद्धांत है। व्यवहार में अपन शरीर और आत्मा को एक मान लेते हैं, व्यवहार है वो, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से जितने भी संसारी जीव हैं उनमें संयोगज अवस्था है शरीर और आत्मा की, उसी से इसका सारा कार्य व्यापार आदि चलता है। नहीं तो मुर्दे भी सुनने लग जाएंगे, मुर्दे भी बोलने लग जाएंगे। अगर वो ना हो तो मुर्दों को भी। तो जब हम देखते हैं कि आत्मा और शरीर जब भिन्न भिन्न हो गया तो मुर्दे जो है अब ना तो सुन पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं। वही व्यक्ति जो कल चल फिर रहा था आज ना चल पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है। तो ऐसी कौन सी हवा निकल गई? वो यही आत्मा थी और इससे सर्वथा भिन्न थी, इसीलिए एकदम से निकल गई। तो ये सिद्धांत है।
व्यवहार में अपन कहते हैं कि मैंने खाया, मैंने पिया, मैं चला, मैं वहां गया, मैं वो गया, ये सब व्यवहार की बात है। तो जो मोक्ष के इच्छार्थी हैं, मोक्ष मोक्ष की इच्छा रखते हैं और उज्जवल चरित्र वाले, उदार चरित्र वाले क्या हैं, उनको ये सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए कि मैं इस शरीर से भी भिन्न हूँ, और ये जो जितने भी भिन्न लक्षण वाले विविध भाव हैं ये मेरे नहीं हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, परद्रव्य हैं, परद्रव्य हैं, स्वद्रव्य कुछ भी नहीं है इसमें। एताम अनुप्रेक्षाम भावेतः शरीरादिकम प्रति स्पृहा नश्यति। बोले ये सब क्यों, काहे को अपन इतना ये सब दिमाग खराब करें, ये जरूरत क्या पड़ी अपन को बार बार एक ही बात को रटने की। तो बोले कि इस अनुप्रेक्षा से क्या होता है, शरीर आदिकम प्रति स्पृहा नश्यति, स्पृहा लालसा नष्ट हो जाती है। ये अनादि के संस्कार हैं, इतनी आसानी से नष्ट नहीं होते, बार बार अपने माइंड को, अपने आत्मा को उस चिंतन में लगाना पड़ता है, बार बार उसको पकड़ के मन को वहां टिकाना पड़ता है, बार बार उसे बताना पड़ता है कि भैया ये शरीर तुमसे भिन्न है, तब कहीं जाके वो चिंतन दिमाग में बैठता है। जब चोट लगती है, जब कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, फिर ये चिंतन करते हैं अपन कि मैं इससे भिन्न हूँ, और जो शांति का जब अनुभव होता है तब कहीं जाके व्यक्ति का माइंड उस तरफ सेट बैठता है कि हाँ वास्तविकता में ये मुझसे भिन्न है। तो इससे क्या होता है, शरीर आदि से वैराग्य उत्पन्न होता है। स्पृहताम नश्यति, उससे लालसा, स्पृहा जो है वो नष्ट होती है। वैराग्य वृद्धि भवति, वैराग्य की वृद्धि होती है। जो वैराग्य वृद्धि का कारण है वही अनुप्रेक्षा है। ततश्च मोक्ष मार्गे गति सुकरा जायते थी, और मोक्ष मार्ग की जो है वो मोक्ष मार्ग में गति सुकर हो जाती है, आसान हो जाती है, मोक्ष मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य श्री ने चौथी अनुप्रेक्षा, कौन सी, अन्यत्व अनुप्रेक्षा का यहाँ पर चित्रण किया। हम सभी भी इस अन्यत्व अनुप्रेक्षा को समझकर अपने जीवन में धारण करें, और इस शरीर से और कर्म नो कर्म आदि से स्वयं को भिन्न मानते हुए अपने गृहस्थी में भी जब तक रह रहे हैं तब तक भी भावना से तो ये चिंतन करते ही रहें, और फिर आगे मोक्ष मार्ग में बढ़कर मुनि दीक्षा को धारण करके और सप्तम गुण स्थान में आरूढ़ होकर भेद विज्ञान के द्वारा साक्षात भी इसका चिंतन करें। इस भावना से यह बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।